ज़िलदार हाउस टेक्सला में 9वीं ऑरेंज फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी थे। इनकी आमद पर ज़िलदार सैयद एहसन शाह, ज़िलदार सैयद ज़हीरुल हसन व दीगर ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। शाह महमूद कुरैशी ने ज़िलदार हाउस आमद पर ज़िलदार हाउस के अहाते में लगे मुख्तलिफ स्टॉलों का दौरा किया। सैयद एहसन शाह ने उन्हें टेक्सला की सकाफत और कल्चर के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी। शाह महमूद कुरैशी ने ज़िलदार हाउस में लगी फूड स्ट्रीट का भी दौरा किया। फूड स्ट्रीट में सजे मुख्तलिफ पाकिस्तानी खाने, चाट स्टॉल, ऐलान मार्केटिंग फैसल हिल की जानिब से मेहमानों की तवाज़ो के लिए लगाए गए थे। शाह महमूद कुरैशी ने फूड स्ट्रीट में लगी अशिया की खूब तारीफ की और ख़ुद इसका जायका भी चखा। ज़िलदार हाउस में बिलखसूस तकरीब की मुनासबत से खानपुरी ऑरेंज सजाए गए थे, जो मेहमानों की तवाज़े के लिए हर टेबल पर मौजूद थे। मेहमानों ने खानपुरी माल्टे और जूस पिया और खूब एंजॉय किया। ज़िलदार हाउस टेक्सला में शाह महमूद कुरैशी की आमद पर ज़िलदार सैयद एहसन शाह और ज़िलदार सैयद ज़हीरुल हसन ने तकरीब में शरीक मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों, मिलिट्री अत्ताशियों से तारुफ कराया। शाह महमूद कुरैशी ने सफारतकारों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। तकरीब में सफारतकारों की फैमिलीज भी शरीक थीं। खूबसूरत ऑरेंज फेस्टिवल की तकरीब में घोड़ों का रक्स भी मेहमानों को दिखाया गया, जबकि भारी भरकम पत्थर उठाने का फन मेहमानों को दिखाया। तकरीब में फोक म्यूज़िक के हवाले से भी एहतमाम किया गया। महमूद कुरैशी ने सफारतकारों के हमरा ऑरेंज केक काटा। तकरीब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मेज़बान तकरीब सैयद एहसन शाह व दीगर ने खिताब किया। शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब में कहा कि real Pakistan is out of Islamabad, and this is just the right time of the year to be traveling out of Islamabad, because the weather is just very, very welcoming, and just the beginnings of spring, and the next, I would say, next few couple of months will be okay. April things start heating up. So, Ehsan, thank you for making this possible. Thank you for coming. And our government is trying to promote tourism. We feel that this country has a lot to offer. Unfortunately, we have a lot to showcase, but we hadn't had the time to do so, particularly in the last 2 decades, because we were all, you and us, dealing with the menace of terrorism, which we have successfully and collectively defeated. And now it's time to move on to do what we ought to do: promote the economy, promote connectivity, promote a better understanding, promote interfaith harmony, and collectively build a better world. Challenges of COVID-19, the challenge of climate change has made it very clear that we have interdependence. Collectively, we can face global challenges. Individually, we can try, but we will not succeed. Collectively, yes, we can make a huge difference. I'm so happy to see so many diplomats here, and I am sure you will mingle, get to know people, and enjoy this Orange Festival. So I wanted to thank the Center for Global Strategic Studies for making this possible,
and thank you for coming. मेज़बान तकरीब इल्दार Political सैयद councillors, शाह ने अपने खिताब all में the मुबारकबाद distinguished शुक्रिया guests, अदा किया। Assalamu उनका alaikum. कहना था कि First of all, I want to welcome all of you at the 9th Orange Festival at Zeldar House, Taxila. I am very obliged and honored to Honorable Foreign Minister of Pakistan, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, for his kind presence. Ladies and gentlemen, I had a special affiliation with Honorable Foreign Minister from a long time, and it is pertinent to mention here, as Pakistani nation, we are proud to have you our Foreign Minister. As you all know, that I am the member of Center for Global and Strategic Studies. Center for Global and Strategic Studies is a think tank, public policy institution which assists the government in making policies and decisions. The main focus of Center for Global and Strategic Studies is geostrategic relations, regional cooperation, national security strategy, and regional connectivity. We have board of members, almost 100 top experts and leaders in our advisory board. Coming towards the Orange Festival. Ladies and gentlemen, why we celebrate Orange Festival? There are two main reasons. Number one, as I'm the friend of the diplomatic community and all the diplomatic community invites me at their defense days, national days, so it's the Orange Festival. I invite all my friends, diplomatic community at my house, and to give the same respect, love and honor to my dear friends. And the second reason to celebrate the Orange Festival is to promote the real image of Pakistan in international community and exposing them by our rich tradition and culture, as well as to promote Taxila, the art of Taxila, the artisans of Taxila, the archaeological and historical sites of Taxila. Ladies and gentlemen, the old name of Taxila was Takshila, city of cut stones. You can visit the majesty of Asian civilization from Greek rulers to Alexander the Great, and from Alexander the Great to Ashoka. You can visit a very historical and archaeological sites from museum to Sirikap, the oldest university of the world, Jolia. If we talk about Pakistan, ladies and gentlemen, Pakistan is very rich in tradition, diverse landscape, fascinating culture, and promises archaeological and historical sites. Pakistan is cradle of different civilizations: Gandhara civilization, Indus Valley, Mohenjo-daro, and Harappa. Time is short. Ladies and gentlemen, Pakistan, I suggest you to visit different cities of Pakistan, as every city has its own culture, own style, own history. People of Pakistan are very loving and caring people and very hospitable. I recommend you to visit maximum cities you can visit for the Pakistan. For me, Pakistan is my heaven. I was born in Pakistan. I will bury in Pakistan. Whatever I can do to promote my country, I will definitely do that. I offer all my assistance to diplomatic missions to strengthen the relation between Pakistan and the respective countries. I am always available. My house will always available. The message for today's Orange Festival is how to move forward for the more better world is we should respect our differences and we should celebrate our similarities.
In the end, I have to share a poetic verse in Punjabi by Baba Bulle Shah. And the essence of that poetic verse is that everything has to be end one day. Be it a flower, be it a relationship, but only thing that remains or continue forever is love, respect and care. Baba Bulle Shah said, कदे महक नहीं मुकदी फुलां विचों, फुल सुख दे सुख जांदे, कोई कदर न जाने प्यार दी, दिल टुट दे टुट जांदे, कोई मोल नहीं जग दिया रिश्तियां दा, ए छुट दे छुट जांदे, एक प्यार नहीं मुकदा दिलां विचों, सा मुक दे मुक जांदे। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। एंजॉय। दिलदार हाउस टेक्सला में मुनक्किदा ऑरेंज फेस्टिवल में मेज़बान तकरीब दिलदार सैयद एहसन शाह और दीगर शरीक सफारतकारों और दीगर मेहमानों ने अपने तासुरात बयान किए। जी बिल्कुल, दिलदार हाउस टेक्सला में मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और दिलदार हाउस टेक्सला में गुज़श्ता अदवार की तरह इस साल भी ऑरेंज फेस्टिवल का खूबसूरत एहतमाम किया गया। आज के तकरीब के जो मेज़बान सैयद एहसन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज की तकरीब के बुनियादी अगराज़ व मकासद क्या थे। जनाब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आज की तकरीब 9वां ऑरेंज फेस्टिवल था और तमाम सफारतकारों को हमने एक दफ़ा फिर इधर बुलाया। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी काफ़ी चेंज हुई है, 50% नए लोग आए हुए हैं। उनको अपनी सकाफ़त, अपनी तहज़ीब, अपनी कुज़ीन्स, अपना कल्चर दिखाने के लिए हमने यहाँ पे बुलाया। 50 से ज़्यादा ममालिक ने यहाँ पे शिरकत की। लगभग 100 से ज़्यादा सफारतकार मुख्तलिफ़ एम्बेसियों के मौजूद थे। हमने यहाँ पर घोड़ा घुमाना जो है पंजाब का रवायती रक़्स होता है, घोड़े का रक़्स पेश किया। उसके बाद टेक्सला का एक कदीम खेल है पत्थर उठाने का मुकाबला। फिर पाकिस्तान में म्यूज़िक की बड़ी अहमियत है तो सूफ़ी म्यूज़िक का एहतमाम किया गया। ये जो स्टॉल आप यहाँ देख रहे हैं इर्द गिर्द, ये पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड है। ऐसी चीज़ जो हर मार्केट, हर बाज़ार में बर्गर, शवारमा, पकौड़े, समोसे, और फिर जो खाने का जो एहतमाम था, उस खाने के एहतमाम में कॉन्टिनेंटल डिशेस थी, पाकिस्तानी डिशेस थी और बारबेक्यू था। तो उनको पाकिस्तान की तहज़ीब से शनासा करना हमारा मेन मकसद था। सर 50 ज़्यादा ममालिक ने शिरकत की है। चूँकि हम ये फ़ेस्टिवल हमेशा इतवार के रोज़ करते हैं, आज हमें वर्किंग दिन में करना पड़ा है और कोविड के हालात भी आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ सफारती तमाम सफारतकारों का जो इतनी बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज़ के हमरा जिन्होंने शिरकत की। सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा से मेरे ज़ाती मरासिम हैं और आज से नहीं 12 साल से वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं। मैंने फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि हुकूमत वक्त की आमद और ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारजा की, चूँकि तमाम लोग सफारतकार मौजूद थे तो सफारतकारों के जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री बनती है वज़ीर ख़ारजा बनते हैं, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की थी और उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई, उन्होंने वक्त निकाला और वो तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा पैगाम भी सफारतकारों को गया है कि पाकिस्तान की जो सकाफ़त है उसको उजागर करने के लिए वज़ीर ख़ारजा पूरे फंक्शन में ख़ुद मौजूद है। अक़वाम आलम को सबसे पहले तो पाकिस्तान एक बहुत पुरअमन, एक अमीर सकाफ़त, इंतहाई मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेरा पैगाम आज की मैंने अपनी तकरीर में भी दिया कि हमारे पास आगे चलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमारे जितने इख्तलाफात हैं हम उनका एहतराम करें और हमारी जितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, जो चीज़ें हमें कॉमन हैं, हम उनको मिल के सेलिब्रेट करें, एक दूसरे का एहतराम करें, मोहब्बत बांटें। मोहब्बत ही पैगाम है। वो दो रीज़न ये हैं कि सफारत कम्युनिटी जो है वो सारी मेरी ज़ाती दोस्त होती है और ये हमें तमाम तकरीबात में मदऊ करते हैं, डिफेंस डेज़, नेशनल डेज़ पर। तो हमारे इलाके में एक कॉन्सेप्ट है पाजी, तो जब हम जाते हैं हमें इज़्ज़त देते हैं, हमारा इस्तकबाल करते हैं, हमें अपने मुल्कों के खाने खिलाते हैं पूरा साल। तो एक दिन मैं उन सब मेहमानों को, अपने दोस्तों को अपने घर बुलाकर, जिसको पाजी कहते हैं, वो उतारता हूँ और उनकी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ। एक मकसद। दूसरा मकसद ये कि पाकिस्तान का असली चेहरा शनासा कराना। देखें, जब ये ऑरेंज फेस्टिवल शुरू हुआ था आज से 9 साल पहले, तो यहाँ की सिक्योरिटी कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी। तो उस सूरत हाल में लोगों को ये पैगाम देना कि हम पुरअमन लोग हैं, ये उस वक़्त बड़ा ज़रूरी था। तो पाकिस्तान के असली चेहरे को शनासा करना, अपने इलाके को प्रमोट करना, अपने मुल्क को प्रमोट करना, यही मकासद है। मेरा कोई ज़ाती मकसद नहीं। मखदूम साहब सबसे पहले तो बड़े खुश थे और उन्होंने कहा कि आज सबसे खुशकिस्मती से बहुत अच्छा मौसम हमें मिला है और इस अक्सर में सकाफ़त को, मुल्क को जानने का तरीका ये है कि आप सफ़र करके
मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करें। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है और हम कोशिश कर रहे हैं अपने फ़ॉरेन पॉलिसी के ज़रिए कि ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर। Very good, very good. We like it. Yes. Very excited. Yes, certainly. I'd like this party. I will horse dance, same song. Okay. Bar food very delicious, very interesting, very tasty. I'd like spicy food. I'd like street food. Pakistan. Russia. Hello there. My name's Tom. I'm from the British High Commission. It's fantastic. I've really enjoyed it. Yeah, the orange ceremony. I especially like the horse dance. And obviously honoured that Foreign Minister Qureshi could be here. So fantastic. Thank you. It's a pleasure. The food is delicious. Yeah, the jalebi especially. I love the jalebi. And yeah, I'm very pleased to be here. Thank you. The oranges were lovely. Yeah, orange juice. Thank you, my friend. I'm from Russian Embassy, and I think that it's a very good event, especially when we have all these diplomatic stuff, and this is a good opportunity for us to build contacts with our colleagues from other embassies. Thank you. Thank you for this. Very happy and glad to see a lot of good people, friendly people, and from Pakistan and from European countries. Yes, I like it and thank you very much. No. Unfortunately, no. But I am going to visit all interesting places in Pakistan. Thank you. And food, rather spicy. Yes. I mean, I really like it, and thank you to the organizing for having this kind of event. And really nice food, nice music, nice horse dancing. Really nice event. Beautiful, and the friendly atmosphere and everything is really good. Food is super tasty. ये जो डिप्लोमेटिक कोर है, इनको ये पाकिस्तान जो रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है ये दिखाने की ज़रूरत है। और चूँकि ये इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है उसी के अंदर रहते हैं, तो इनका इंटरेक्शन पाकिस्तान के आम लोगों से नहीं होता। तो ये इस तरह के फंक्शन से पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो इन लोगों को दिखाने का मौका मिलता है। और इनको ये दिखाने की ज़रूरत भी है कि पाकिस्तान के लोग बड़े नॉर्मल हैं, एबनॉर्मल लोग नहीं हैं। ये इस सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके साथ एक अमेलगमेशन की ज़रूरत है, एक मिक्स होने की ज़रूरत है। तो ये पाकिस्तान के आम लोगों से यहाँ पे आके मिले हैं। इन्होंने पाकिस्तान का जो आम कल्चर है वो देखा है, और ये देखा है कि पाकिस्तानी हमारी तरह से सोचते हैं, हमारी तरह की चीज़ों को इंजॉय करते हैं। मसलन पाकिस्तानी म्यूज़िक इन्होंने सुना है, पाकिस्तानी फूड जो है इन्होंने इंजॉय किया है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के कल्चर के लिए, हमारे टेक्सला शहर की सकाफ़त के लिए, हमारे टेक्सला शहर की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको दिखाने के लिए इस तरह का जो फंक्शंस हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और ये पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा एक्सट्रीमिज़म के हवाले से एक पहचान बनी हुई है, उस तअस्सुर को ख़त्म करके एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पाकिस्तान का जो है वो दिखाने की ज़रूरत है। ये उसी की कड़ी है, और यहाँ के लोगों ने बहुत इन्जॉय भी किया है। बहुत इन्जॉय किया मेहताब शाह साहब जी। बिल्कुल ही हम आज के फेस्टिवल में जो शरीक है लोग, उनसे हम राय ले रहे हैं। और आज जो यहाँ पे कवाली पेश की गई उसका जनाब बहुत खूबसूरत इन्जॉय किया जी, बहुत खूबसूरत है। हालांकि डिप्लोमेटिक लोग थे और वो जो पाकिस्तानी जो कल्चर उन्होंने देखा और वो जो कवाली देखी वो बड़े महजूज हुए। जी हम तो ये कहना चाहेंगे कि ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए पाकिस्तान में, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा फेस्टिवल था। और हमें भी परफॉर्मेंस करते हुए हमें भी बड़ा मज़ा आया, और सब मेरी पूरी टीम ने मज़ा लिया। और माशाल्लाह हो सके तो आपने भी मज़ा इंजॉय किया होगा, और आप बहुत अच्छा है जी। माशाल्लाह अच्छा फंक्शन हुआ है, वो बेहतरीन हुआ है, फूड वगैरह। पाकिस्तान की सकाफ़त है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये ऑरेंजेस हमारी सकाफ़त टेक्सला की, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन के सफ़ीर हैं और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो यहाँ पे आएँ। शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ लाए, और तमाम डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के सफ़ीर और उनकी फ़ैमिलीज़ भी तशरीफ़ लाई। तो ये पाकिस्तान की सकाफ़त को उजागर करता है, पाकिस्तान की डाइवर्सिटी और हमारी जो ये जो कॉर्प्स हैं कि माल्टे की, किन्नू की, फ्रूट की, इवन मैंगो की, इसकी भी एक मंडी बताता है कि इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोविड के बाद ये कल्चरल फेस्टिवल ज़ेलदार हाउस के अंदर मैं समझता हूँ एक शानदार इवेंट है, और ऐसे इवेंट और ज़्यादा होने चाहिए। मैसेज यही है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी।
इमेज पाकिस्तान का डे वन से सॉफ्ट है। हर इमेज की नुमाइंदगी हर शहरी करता है। एहसन शाह ज़ीलदार मेरा स्टूडेंट है। ये जब मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, ये तब भी स्टूडेंट बॉडी में इलेक्ट होके ये इसने इलेक्शन जीता था, और मैं हैरान था कि इस्लामाबाद के अंदर ये सारे बच्चों को इलेक्शन कैसे, इसके अंदर लीडरशिप है, इसकी नीयत साफ़ है, ये हुब्बुल वतन बच्चा है, और ये जो इसने एक्टिविटी क्रिएट कराई है, इससे यकीनन पाकिस्तान का नाम और इमेज ऊपर जाएगा। इट इमेज हमेशा से पॉजिटिव था, है, और wonderful, very interesting display of Pakistani culture and art and music, and very privileged to be invited. Thank you. Particularly tasty and I really enjoyed it, so glad I came. ये बड़ा अच्छी रिवायत इन्होंने डाली है यहाँ टेक्सिला में। एक तो टेक्सिला की जो एक हिस्टोरिक एक इसकी तारीख़ी हैसियत है, उस पर भी लोगों की नज़र पड़ती है, और ख़ास तौर पे ये सफारतकारों की नज़र पड़ती है। इससे पाकिस्तान के लिए मौक़े पैदा होते हैं टूरिज़म के, फिर ये इस्लामाबाद से ज़्यादा दूर भी नहीं, और ये है कि जो आपकी ये इलाका है ये इंटरनेशनली फेमस इलाका है, और यहाँ इसकी जो तरक्की है और इसकी में जो भी डेवलपमेंट में कमियां हैं वो जो है उजागर होती हैं, और उनसे लोगों के लिए बेहतर मौक़े पैदा होते हैं। सफारतकारी के हिसाब से मैं समझती हूँ ये एक बड़ी अच्छी इंडिविजुअल काविश है, इसको गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ सपोर्ट। This is the fruits of the Pakistan. I love Pakistan. I'm from Japan. Nice to meet you. I love it. Thank you so much. I love Pakistan food, Pakistan culture. बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तानी ट्रेडिशनल जो स्ट्रीट फूड है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली एम्बेसडर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट जगहों से वो मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आए हैं यहाँ पे क्योंकि उनके लिए एक्सेसिबल नहीं होता ये फूड। तो हम लोगों ने ये चाहा है कि वो पाकिस्तान का कल्चर उसको एक्सपीरियंस करें, उसे खाएँ, उसे देखें, ताकि वो जान सकें इसके कल्चर के बारे में और लोगों को बता सकें। वैसे ही हमारा डिपार्टमेंट नहीं है ये, क्योंकि हम लोग एक रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है और हम लोग रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये एक हमारी तरफ से एक जेस्चर था हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कितने जो है हम मेहमान नवाज हैं। हाँ जी, ये डिफरेंट जितना भी ये सब ट्रेडिशनल पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड है, तो ये हमारा ही स्टॉल है, ये हम लोगों ने अरेंज किया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया है। ये हमारी 9th ऑरेंज फेस्टिवल है ज़ेलदार हाउस में, और इसमें हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे एम्बेसडर्स 50 मुल्कों से जो आते हैं उनको हम अपना कल्चर दिखा सकें, उनको हम अपनी तहज़ीब दिखा सकें। हमारे आप पीछे देख सकते हैं टेक्सला के और पाकिस्तान के लोकल फूड स्ट्रीट पहले लगाई गई है। हमने यहाँ पर अच्छा खाने का तमाम किया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे हॉर्स डांसिंग दिखाई है, कवाल दिखाया है। बहुत ही आप देख रहे होंगे कि खुशगवार मूड में एम्बेसडर्स हैं हमारे यहाँ पे। फॉरेन मिनिस्टर साहब आए हैं। मैं सब मेहमानों को वेलकम करता हूँ, ज़ेलदार हाउस पे वेलकम करता हूँ सब मेहमानों को जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी ग्रेटनेस है, इससे बड़ी माशाल्लाह जो है ज़ेलदार साहब जी फोकल पॉइंट ऑफ द टेक्सला, और जो है ना ये हर साल कराते हैं माशाल्लाह। यहाँ पे ज़ेलदार हाउस पे जो है ना ये मेला सजता है ऑरेंज का, और इसमें पाकिस्तान की जो है ना मसनूआत जो है ना सब पूरी दुनिया के अंदर जो है ना मुतारफ़ करवाई जाती हैं। इस पे हम बहुत दुआ गो हैं ज़ेलदार हाउस, ज़ेलदार फैमिली के लिए ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सर, ऑरेंज फेस्टिवल को तो आपने जिस नज़र से देखना है वो नज़र हमें बताएगी। हम तो इस मकसद के लिए करते हैं कि ये प्रमोशन ऑफ टूरिज़म हो, प्रमोशन ऑफ हमारा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का हो, लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी नहीं है, और कोई दहशतगर्दी है तो वो भी इम्पोज़ की जाती है हम पे। अदरवाइज़ यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ की सकाफ़त, यहाँ की हॉस्पिटलिटी लोग इंजॉय कर सकते हैं, और उनको पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान आके उनको एंजॉय करना चाहिए। ये तकरीबन 67 कंट्रीज़ के डिफरेंट, कुछ के मिलिट्री अटैची थे, कुछ के एम्बेसडर थे, और कुछ के उनके डिफरेंट, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन यह है कि उसके बावजूद आप देख लें, जबकि इतनी पाबंदी हैं दुनिया में, तो वो यहाँ पे आए हैं, तो आप इसको तादाद में ना गिने, इनका नहीं। सबसे पहले शुक्रिया आपने मेरे व्यूज़ लिए। जनाब ये शाह साहब की काविशें तकरीबन ये 12 साल हो गए हैं, और माशाल्लाह अभी ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गया है,
और शाह साहब हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान को फ्रेंडली माहौल दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट प्लेटफॉर्म। डिप्लोमेटिक पर्सनस हैं, उनकी खसूसी तौर पे तवाज़ो के लिए ये एहतमाम किया है ऐलान मार्केटिंग ने। क्या सजाया है सर? हमने दही भले, चना चाट और गोलगप्पे। गोलगप्पे तो लोगों ने खाए? जी सर बिल्कुल, सब लोगों को गोलगप्पे बहुत पसंद आए हमारे, क्योंकि हमारी हर चीज़ घर से है, होममेड बनी बहुत हुई है। इंजॉय किया सर, लोग बहुत अप्रिशिएट करके फूड। जी सर बिल्कुल, लोगों ने बहुत पसंद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मोंग दुनिया ته په هر سټیج باندې هغه خپل قوت ښکاره کړی ده په هر سټیج باندې. اوس الحمدلله افغانستان کې مکمل امنیت راغلی او دا موږ ته دا انرژي راکوي چې اوس به موږ ان شاء الله تعالی په اقتصادي امورو باندې په هغې باندې به ډېر فوکس وي او د هغې لپاره الحمدلله مختلف ممالکو سره زموږ خبرې هم روانې دي، زموږ د وزیرانو په سطح باندې هغه ځي او بېلابېل ملاقاتونه کوي، خصوصا زموږ ګاونډی پاکستان چې دا زموږ یو ښه ګاونډی ده، موږ سره ښه تعلقات پاتې شوي دي. نو اوس موږ غواړو چې له دوی سره اقتصادي روابط او تجارتي روابط دا های لیول ته وخیږي او کوم مشکلات چې هغه د تجارو وي او یا په تجارت او ټریډ کې کوم مشکلات مخې ته راځي، ستونزې راځي، هغه به ان شاء الله په شریکه باندې حل کوو. د موږ به ان شاء الله کوشش پدې چې تجارت به د سیاست نه جدا کوو، تجارت به بیل وي او سیاست به بیل وي. دا پخوا په تیرو حکومتونو کې سیاسي ایشوز هغه ډېرې وي، هغه به د دوی مابین کې راتللی، نو زور به بیا هغه بارډر نه ښکلو، بیا به غیر مستقیم په تجارانو باندې په هغې باندې به دا هغه پرېوتو، هغې ته به تاوان رسېدو. اوس به انشاءالله موږ تجارت او اقتصاد او له سیاست نه بیلو. انشاءالله په دې باندې کار روان ده، د دې مخه به نیول کېږي، که څه هم دا مسله د پاکستان خپله داخلي مسله ده، په سرحدو په بارډر باندې نه ده، نو شکې او دننه د پاکستان خپله مسله ده او موږ دعا کوو او خپل کوشش به کوو چې انشاءالله تعالی پاکستان دا حس نه کړي چې د اسلامي امارت حکومت راغی او دلته نا امني زیاته شو. موږ له دنیا سره دا تعهد کړی او معاهده کې د قطر معاهده کې چې افغانستان خاوره به د هیڅ چا په ضد هغه نه استعمالیږي. اوس هم په هغه تعهد باندې ولاړو. دا وړه وړه ایشوز راځي، انشاءالله د دې به مخه نیسو. कैमरामैन टीम के हमरा सैयद उमर अली, नवाज टेक्सला, इस्लामाबाद।